Okay. Good morning, student. Today is second video from chapter 9, class 9 physics. That is the force and law of motion. First, Newton's second law. This video is related to Newton's second law and third law. Newton's second law states that the force applied on a body is directly proportional to force applied on a body is directly proportional to rate of change of momentum. इसको ठीक से समझें. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम of a body is the product of force and displacement. The product of force and displacement is known as momentum. If a body of mass m starts its motion with u, initial velocity, and after t seconds its speed becomes v, then the initial momentum will be mu and final momentum will be mv. Change of momentum will be mv minus mu. And rate of change of momentum is equal to mv minus mu by t. Okay? Then mv minus mu by t is directly proportional to force. According to Newton's second law, force is directly proportional to rate of change of momentum. I have written here mv minus mu by t, and when you take common m, then v minus u by t. A proportional m, v minus u by t, you already know that v minus u by t is equal to a. Hence, F proportional m into a, F is equal to kmn, where k is constant. The value of k is 1 for vacuum or in air. In media, if force is applied in air media or in vacuum, then the force is equal to ma, because k will be 1. But k changes in another media like liquid or other media, it will change. But mostly you will know that the force is always applied in either air or vacuum. For any special condition in water, that will be you will study in further classes. Okay, students? Now we will see the Newton's third law. Newton's third law of motion. Okay, students? Now listen. Newton's third law of motion. To every action, there is an equal and an opposite reaction. Once again, to every action, there is an equal and an opposite reaction. That is the Newton's third law of motion. Here, third law of motion. Without action, there will be no reaction force. We can see it in our daily life. Very easy to see. If you, for example, if we move on the road, we push the backward force on the ground. Hence, the forward we apply backward force on the ground, and reaction force pushes us in forward direction. If there is no reaction force due to less friction, then we will slide in backward direction. Okay? आप जानते हैं यदि हम सड़क पे चलते हैं, रिएक्शन फोर्स बहुत जरूरी है. रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा तो सड़क पे गाड़ियां भी नहीं चल पाएंगी, हम पैदल भी नहीं चल पाएंगे. चलते हैं तो एक्शन जमीन पे करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. तो लोकोमोशन के लिए ये रिएक्शन फोर्स बहुत जरूरी है. वेरी इजी एग्जाम्पल, यदि आप किसी नाव से कूदते हैं तो नाव पर एक्शन फोर्स बैकवर्ड लगाते हैं और फॉरवर्ड आप जंप कर जाते हो. तो आप जो ही जंप करते हो, नाव अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है. तो रिएक्शन फोर्स आपको दिखता है. रॉकेट देखते हैं, रॉकेट जो है, जो गैस उसके जेट से निकलता है वो डाउनवर्ड जाता है और अपवर्ड उसको पुश करके ले जाता है. वो रिएक्शन फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. और इसमें आगे है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
it's also very important. The derivation of formula is also important because the many numerical questions are always comes from this formula. First of all, you try to listen what is law of conservation of momentum. Conservation of momentum, the law of conservation of momentum states that momentum is always conserved. Always conserved. Momentum never wastes. For example, if two body is moving in a direction, I have written law of conservation of momentum. It is derivation only, but law is not written here. लॉ इज मैं लॉ आपको बता रहा हूँ, लॉ मैंने वहां लिखा नहीं है, केवल उसकी डिराइवेशन करने के लिए मैंने लिखा है। लॉ बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से। लॉ क्या है? इफ टू बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो आप जानते हैं दो बॉडी यदि अपोजिट में आएगी तो उसमें कोलिजन तो श्योर है कि होगा। लेकिन यदि एक ही डायरेक्शन में दोनों बॉडी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, तो ये पीछे वाला का स्पीड यदि अधिक है तो ये इसमें कोलिजन होगा, अदरवाइज ये दूर हो जाएगा। तो ये इसमें जो डायरेक्शन में लिखे हैं कि U1 और U2 इस तरह है कि ये U1 जो है ना, ये अधिक है और ये कम है। U1 U2 में इनिशियल वेलोसिटी जो हमने लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी U1 एंड U2 आफ्टर सेकंड 30 सेकंड इसकी वेलोसिटी V1 और V2 हो जा रहा है। तो लॉ में बस आप इतना ही लिखेंगे, इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ collision occurs in there, then the momentum before collision, the sum of momentum before collision is equal to the sum of momentum after collision. Okay students, once again listen, फिर से सुनिए। यदि दो बॉडी मूव कर रही है एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, और उनमें यदि कोलिजन होता है, टक्कर होता है, तो दोनों के मोमेंटम का सम जो है बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले जो मोमेंटम का सम है, मान लीजिए M1 है और दूसरा का मास M2 है, उसका स्पीड U1 है और इसका स्पीड U2 है, तो M1 U1 प्लस M2 U2, और फाइनल वेलोसिटी V1 V2 है, तो इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यानी सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन और इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आपको हम यहाँ डिराइव करेंगे, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि इफ टू बॉडी इज मूविंग इन forward direction or in opposite direction, if collision occurs in them, then the sum of momentum before collision is always equal to the sum of momentum after collision. This is the law of conservation of momentum. Okay students, now see the derivation. For the derivation I have written here, A and B are two bodies having masses M1 and M2. They are moving in the same direction with initial velocity E1 and U2. Here you should know that E1 is greater than U2. जब E1 U2 से अधिक होगा तभी एक कोलिजन होगा, अदरवाइज दोनों दूर दूर होंगे। ये U2 अधिक होगा तो ये कभी टक्कर नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में तो होगा ही। तो ये टक्कर हो रहा है, E1 अधिक है इसलिए से टकरा गया। तो एक फोर्स A जो है B पर लगा रहा है, A इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और B भी A पर लगा रहा है, इफ बी ए इन बैकवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन यदि चेंज हो रहा है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। एफ बी ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यहां लिखा गया। अब थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स होता है। अब उसको हम करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, now we get action force is equal to reaction force. Action force is equal to reaction force.
action force is FAB, A to B. A applies force in forward direction, A to B, that is the FAB is equal to reaction force B applies to A in backward direction, that is माइनस. बैकवर्ड के लिए डायरेक्शन आप माइनस लिखेंगे, माइनस एक बी होगा. FAB आपको पता है, अभी इसके पहले जो डिराइव किए हैं फर्स्ट लॉ में इक्वेशन. फोर्स जो है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होता है. तो यहाँ फोर्स m1 यदि बॉडी है तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा भाई, ये U1 से V1 हो जा रहा है. ए का जो है स्पीड जो U1 था वो टक्कर के बाद V1 हो जा रहा है, और B का स्पीड U2 था जो टक्कर के बाद V2 हो जा रहा है. तो मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में आप यहाँ लिखेंगे M1 और V1 माइनस U1 होगा. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा तो कि MV1 माइनस MU1, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ. कितने सेकेंड में चेंज हुआ, 30 सेकेंड में. तो FAB ये हो गया. ठीक इसी तरह से यहाँ माइनस साइन रहेगा, और FBA में M2, अब B का मास M2 है और इसकी स्पीड V2 हो जा रही है टक्कर के बाद, और U2 जो है टक्कर से पहले था बाई T. अब T कैंसिल हो जाएगा इक्वल टर्म्स में. अब इसको आगे करते हैं. देखिए आगे क्या होगा. यहाँ से आप समझ सकते हैं. यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लिख लूँ आगे. मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट खोलिए. M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल टू माइनस M2 V2 प्लस हो जाएगा, माइनस टू माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो M2 U2. अब देख रहे हैं. अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ. ठीक, M1 V1 को इसी तरह रहने दे रहे हैं. M1 V1 और इसको माइनस वाला जो M2 V2 है इसको लेफ्ट में ला रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा. M2 V2 इक्वल टू को नीचे रखते हैं. ध्यान दीजिए, इधर प्लस में है M2 U2 और ये माइनस M1 U1 को इधर ला रहे हैं तो प्लस M1 U1, बल्कि हम इसको पहले ही लिख देते हैं M1 U1 को. M1 U1 प्लस M2 U2 हो गया. M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 हुआ. इसको सीधा कर लीजिए तो मिल जाएगा इस तरह से. M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. ये फार्मूला है. यदि कोलिजन बॉडी में हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, दो बॉडीज है, तो उसके लिए आप इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये जो ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है रेक्टेंगल में, दैट इज द फार्मूला ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. स्टूडेंट्स, थैंक यू.